let's start with revision. Revision is section 115. Revision is 115. Let's see what revision says. Now, section 115, please. Can you see my screen? Can you see the Bayer Act open? Bayer Act दिख रही है? Yes, sir. ठीक है. Section 115, please. Revision. आप लोग अपने साइड में Bayer Acts खोल लीजिए because में there are some few words for interpretation. तो अपनी Bayer Acts में highlight या underline कर लीजिएगा, please. Revision, please. The High Court may call for the record. ध्यान रखना, the word used is High Court. The word used is High Court. इसका मतलब ये होता है that the revision की power is only with the High Court. अभी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा इसको, but right now the word used is High Court, and in the entire section the word used is High Court. आगे चलो. The High Court may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to such High Court. This is subject to interpretation. I will interpret this. And in which no appeal lies thereto. This is also subject to interpretation. फिर से पढ़ रहा हूं. The High Court may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to such High Court and in which no appeal lies thereto. And if such subordinate court appears, so and so, so and so, so and so. देखो वो क्या कह रहे हैं, सॉरी, वो क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली ये कह रहे हैं that first when we read, basically they are saying that it is the High Court that will call for the record. It is the High Court which will call for the record and call for the record from the subordinate court. और एग्जैक्ट फ्रेज क्या यूज हुआ था? The High Court may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to such High Court. Any court subordinate to such High Court. इसका क्या मतलब हुआ? Any court which is subordinate to such High Court. कोई कोर्ट subordinate to High Court तो समझ में आता है, but what is this such? This such means, so for example, if the High Court is Delhi High Court, so if the High Court is Delhi High Court, तो Delhi High Court के जो subordinate courts हैं, Delhi High Court का जो subordinate court होगा, be it civil judge, be it district court, तो High Court will call for the record from those subordinate courts which are subordinate to such High Court. मतलब ये High Court. अब सच का मतलब ऐसे मत इंटरप्रेट कर लेना that Delhi High Court will call for the record of subordinate court which is in हरियाणा या which is in पंजाब. ऐसा नहीं होता. सो सच हाई कोर्ट का मतलब उस हाई कोर्ट के नीचे उसी जुरिस्डिक्शन में, उसी एरिया में वो जो हाई कोर्ट है उसका सबऑर्डिनेट. तो अगर मैटर दिल्ली का है, इफ द मैटर इज दिल्ली in Delhi, so High Court in Delhi is Delhi High Court. So court subordinate to such High Court will be civil judge or district court. So High Court will call for the record of the case. Actually, the word uses any case from these two courts, be it civil judge or be it district court. मैं आपको पहली क्लास में हायरार्की बताई थी. So it is civil judge, first is civil judge junior division, then is civil judge senior division, then it is the then it is the district court. So High Court can call for the record of any case from civil judge junior division, can call for the record of any case from civil judge senior division and so on from the district court. ये पॉइंट समझ में आया तो बताओ. Yes, sir. Clear. ठीक है. आगे चलते हैं. The High Court may call for the record of any case. Now the word used is any case. ध्यान से पढ़ना. Any case. This is very, very important. Any case.
any case. Now the word used is any case. Any case. But isse before I go on to interpret any case, I want to tell you and I want to make it very explicit abhi that power of revision, ये sentence में लिख भी लेना कि revision की power of revision is there with the high court. रिविजन की पावर हाई कोर्ट के पास ही होती है क्योंकि सेक्शन यही बोल रहा है 115. So power of revision is there with the high court and high court can call for the record in any case. So revision की power is with the high court. Now come on to this. Any case. Now when you have to interpret this कि any case. Now what do you mean by any case? क्या any case का वो मतलब होता है that it is a case in which it is a case in the trial court. एक ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है और उस केस में एक जजमेंट फाइनल जजमेंट हैज कम एंड दैट टू ऑन मेरिट्स. डज एनी केस मींस दिस? एनी केस का मतलब वो फाइनल जजमेंट की बात कर रहे हैं जो मेरिट्स पे आई है फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट, या एनी केस का मतलब होता है एनी ऑर्डर और एनी केस means any order which has been passed during the pendency of the suit. Which has been passed during the pendency of the suit. देखो एग्जांपल लेके समझाता हूँ, पहले इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा प्लीज. So for example, there is a dispute, let's suppose between me and let's suppose Kashish. There is a dispute between me and Kashish with regard to the ownership of this house, as to who is the owner of the house. मैंने सूट फाइल कर दिया कशिश पे. I have filed a suit on Kashish. Today is the day when I have filed the suit on Kashish. ट्रायल कोर्ट में सूट फाइल हो गया, मैटर इज गोइंग ऑन, चल रहा है. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, एक ट्रायल कोर्ट में जब भी एक कोई सूट की सुनवाई हो रही होती है, उसमें देयर आर वेरी ड्यूरिंग द पेंडेंसी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स पास होते हैं. कभी ऑर्डर फॉर सब्सटीट्यूशन, कभी ऑर्डर फॉर लेट्स सपोज टू सप्लाई एनी डॉक्यूमेंट या व्हाटएवर. बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स भी पास होते हैं जब एक ट्रायल चल रहा होता है. तो दिस इज व्हाट आई एम रेफरिंग टू व्हेन आई से दैट एनी केस का मतलब क्या, वो कोई भी ऑर्डर होंगे जो पास होते हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट. जैसे मान लो किसी पार्टी को इम्प्लीड करना है, कोई पार्टी थी नहीं, पहले तो वो पार्टी थी नहीं, बट अब वो इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी है, इट इज अ नेसेसरी पार्टी दैट हैज टू बी इम्प्लीडेड इन द सूट. सो मान लो सेजल इज देयर. तो पहले तो सेजल अवेलेबल नहीं थी और पहले तो मैंने जो सूट फाइल करा था वो तो मैंने कशिश के खिलाफ भी कर दिया, बट बाद में मुझे मालूम चला दैट सेजल का भी इस घर में हिस्सा है, या सेजल भी मेरे खिलाफ मुझे थ्रेट कर रही है टू दैट आई विल डिस्पोजेस यू ऑफ द हाउस. तो मैंने उसको भी जोड़ दिया इसी सूट में. आई हैव इम्प्लीडेड हर इन द सूट. सो कोई ऑल दोज interim orders, important word, all those interim orders, does it mean this? अब what do you think? Any case का क्या मतलब हो सकता है? Does it mean the judgment which has come on merits, or does it mean any order which has been passed during the pendency of the suit? आपको क्या लगता है? What it should be? So interim orders भी हो सकते हैं. Interim orders भी हो सकते हैं कि नहीं? Answer is this only. Okay. Any case का मतलब they are not referring to the final judgment. मैं अभी पूरा सेक्शन ध्यान से पढ़ूंगा तो तब मैं यहाँ पर रेफरेंस तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम लोग बहुत ध्यान समझो उसको. Any case का मतलब ये नहीं है that they are referring to the judgment which has come on merits after the trial has been concluded. ध्यान सुनना. When they say any case, they don't mean कि trial के once the trial is concluded, judgment has come. No.
अगर जजमेंट आ गई फिर तो आप अपील करोगे या रिव्यू में जाओगे, व्हाटएवर। बट रिवीजन उन ऑर्डर्स के खिलाफ जो पास हुई है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which has been passed during the pendency of the suit. Because listen to me very carefully, because जब भी कोई सूट चल रहा होता है ना, तो उस सूट में, जैसे मैंने यहाँ भी तुम लोगों को बताया, उस सूट में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स पास होते हैं, लाइक एग्जांपल्स आई हैव गिवन, इम्प्लीटमेंट ऑर्डर, व्हाटएवर। सो इन ऑर्डर्स के खिलाफ, ये जो ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, इन ऑर्डर्स के खिलाफ आप रिवीजन में जाओगे। अगेंस्ट दीज ऑर्डर्स, against these orders you will go in revision. ये बात समझ में आ गई? तो जो इंटरिम ऑर्डर्स है ना हमारे, जो भी इंटरिम ऑर्डर्स हैं हमारे, उन्हीं ऑर्डर के खिलाफ आप रिवीजन के लिए जाओगे, नॉट इन दैट केस इन विच द फाइनल जजमेंट हैज कम ऑन मेरिट्स। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी प्रेजेंट? यस सर। कुछ पूछना है तो पूछ लो भी। आगे चलते हैं। Now, since you have understood that the revision will lie against those orders which are passed during the pendency of the suit, तो एक बात और समझो यहाँ पर, and this is very very important, and that is revision उन्हीं orders के खिलाफ आप फाइल कर सकते हो। Revision can be filed only against those orders जिनके खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवीजन उन्हीं ऑर्डर के खिलाफ आप फाइल कर पाओगे जिन ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते। Those orders which are not appealable, only then will the revision lie. ये लिख के रख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं ऑर्डर के खिलाफ आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। और इसी में एक बात और बता दूं, और ये यहीं के लिख के रख लो, every order is not appealable. As I told you earlier, every order is not appealable. Only those orders are appealable which are mentioned very specifically in Order 43 or Section 104, 105 and 106. जो ऑर्डर्स यहां मेंशन्ड हैं, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो। जो ऑर्डर्स यहां मेंशन नहीं है, मतलब उससे उनके खिलाफ अपील फाइल नहीं कर सकते, तो अब आप रिवीजन फाइल कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैट में भी लिख कर रखना, अपनी कॉपीज में भी लिख कर रखना। समझ में आ गया एवरीबॉडी? सेजल, कशिश, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। The High Court may call for the record of any case, मतलब समझ चुके हो आप लोग, which has been decided by any court subordinate to such High Court in which no appeal lies. देखो लिखा है ना इसमें, in which no appeal lies thereto. उन्हीं ऑर्डर के खिलाफ आप रिवीजन फाइल कर सकते हो, in which no appeal lies. सेक्शन खुद बोल रहा है अपने आप। अब इन्होंने ये तीन, and if such subordinate court appears, number 1, to have exercised a jurisdiction not vested in it by law. हालांकि I will give examples to explain these three clauses, but just to explain it very superficially to you,
if such subordinate court appears to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, मतलब हाई कोर्ट के पास किसी एक केस को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट फिर भी उसने उस केस को ट्राई कर लिया है. Have exercised a jurisdiction not vested in it by law. By law एक पर्टिकुलर ट्रायल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है एक केस को ट्राई करने की. So suppose मान लो रेरा which relates to housing disputes, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. अब आप रेरा कोर्ट के पास सिविल केस फाइल नहीं कर सकते, ये एक्साइज केस फाइल नहीं कर सकते. तो because RERA case does not have jurisdiction to entertain any suit or appeal filed by the filed in reference to the excise matters or with regard to any civil dispute or any suit for that fact. Number 2, to have failed to exercise a jurisdiction so vested, मतलब उस कोर्ट के पास jurisdiction थी उस केस को ट्राई करने की, बट उसने ट्राई नहीं किया. और नंबर 3, to have acted in exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity. मतलब jurisdiction तो थी, बट वो क्या बोल रहा है, to have acted in exercise of its jurisdiction illegally, मतलब उसने jurisdiction थी, वो ट्राई भी कर रहा था, बट उसने कोई illegal order पास कर दिया या illegal कोई material irregularity आ गई है उसके order में, तो तब उन order के खिलाफ, अब इन 3 order से खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो. ये पॉइंट सबको समझ में आया? Yes, sir. Number 2, please. 115 clause 2. अभी मैं इन 3 clause से वापस आऊंगा, so don't think I've left it. Number 2 पहले समझा रहा हूँ. The High Court shall not under this section vary or reverse any decree or order. क्या बोल रहे हैं? मैं ही रुक रहा हूँ. क्या बोल रहे हैं? The High Court shall not under this section vary or reverse any decree or order. देखो और कुछ समझो ध्यान से. Against any decree or order, revision will lie. Against any decree or order, revision will lie. Only, listen to me carefully, against a particular decree or an order, एक डिक्री के खिलाफ या ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन लाई करेगी. If this decree or this order is not appealable to the High Court or any court subordinate to such High Court, ये वाला High Court. If blatant rule is decree or order के खिलाफ revision lie करेगा, this is the simple rule. But those decrees or those orders जिनके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते to the High Court या any court subordinate to that High Court, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ आप रिवीजन फाइल कर सकते हो. सिर्फ उन्हीं के खिलाफ आप रिवीजन फाइल कर सकते हो. अदरवाइज ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल. सॉरी, अदरवाइज ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल. मैंने उसका बोल दिया था जो मैं तुम्हें ऑर्डर 43 और 104, 105, 106 का बताया था. बट लीव दैट. वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी डिक्री ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन लाई कर सकती है अगर उसके खिलाफ अपील लाई नहीं करेगी टू द हाई कोर्ट और टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट which is subordinate to that high court. बिकॉज ऑर्डर अगर अपीलेबल नहीं है, बिकॉज वो ऑर्डर 43 सॉरी वो अगर वो ऑर्डर 43, 104, 105, 106 में नहीं लिखा, मतलब उनके खिलाफ अपील फाइल नहीं कर सकते. तो अगर उनके खिलाफ अपील फाइल नहीं कर सकते तो आप रिवीजन फाइल करोगे. बट ओनली अगेंस्ट दोज ऑर्डर्स विच आर नॉट मेंशन इन 43, 104, 105 एंड 106. सिर्फ उन्हीं के खिलाफ.
क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बताया था सारे ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते, सिर्फ वही अपीलेबल हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो जो यहाँ मेंशन नहीं है उनके खिलाफ आप रिवीजन फाइल कर लो, जो मेंशन नहीं है उनके खिलाफ आप रिवीजन फाइल कर लो। ये बात समझ में आई? यस सर। एक सेंटेंस लिख लो प्लीज यहीं पर ही। इसमें लिखो टू सम अप revision power to sum up, revision power is not only against a decree or judgment. Revision power is not only against decree or judgment, comma, it is against orders also. It is against orders also. Well, but it is against orders also. But only against those orders. But only against those orders which are not appealable. Only against those orders which are not appealable either to the High Court, are not appealable either to the High Court or to any court subordinate to such High Court or to any court subordinate to such High Court. Full stop. Against those orders, you will go in revision. Against those orders, you will go in revision. Full stop. Point clear everybody? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर सर। ठीक है जी, क्लियर सर। अब आ जाओ जरा ऊपर। ये 3 पॉइंट्स थे ABC जो मैंने पढ़ के छोड़ दिए थे। ABC, ए बोल रहा है टू हैव एक्सरसाइज्ड अ जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ। बेसिकली ABC ना सेक्शन 115 क्लॉज 1, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी और सब क्लॉज 3 बेसिकली ग्राउंड्स बता रहे हैं। दे आर टेलिंग यू द ग्राउंड्स फॉर रिवीजन। तो पहला ग्राउंड that the court did not have power or jurisdiction. So they to have exercise a jurisdiction not vested in it by law. मतलब उसके the court did not have the power or jurisdiction to pass an order, still उसने वो order pass कर दिया. First point is that the court did not have the power or jurisdiction to pass that order, but still the court has passed an order. Second, to have failed to exercise a jurisdiction so vested. Court had the jurisdiction या power. कोर्ट के पहले केस में पावर ही नहीं थी, सेकंड पॉइंट में पावर है, बट द कोर्ट हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज दैट पावर. थर्ड, टू हैव acted in exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity. कोर्ट के पास थर्ड पॉइंट में भी पावर है, बट वो पावर कोर्ट ने एक्सरसाइज करी विद सम मटेरियल इरेगुलरिटी. कोई एक एरर आ गया है which is in the proceeding while giving the order. So court had the power in third clause also, but it exercised that power with some material irregularity or with any illegality. ये 3 पॉइंट्स हैं और ये 3 ग्राउंड्स हैं फॉर रिवीजन.
चौथा ग्राउंड आप ऐड कर लो, 3 तो लिखे हुए हैं, ये तो मेंशन्ड है। चौथा कौन सा ऐड करोगे ग्राउंड्स फॉर रिवीजन में? चौथा कौन सा ऐड करोगे जो अभी भी पढ़ा है? अभी भी पढ़ा है that the order is not appealable, that the order is not appealable। तो जो ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होंगे टू द हाई कोर्ट और एनी कोर्ट विच इज सबऑर्डिनेट टू दैट कोर्ट, उनके खिलाफ आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर रिवीजन। देखो ध्यान समझो, थोड़ा सा भागने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली एंड स्लोली। सेक्शन 115 क्लॉज 1 में 3 ग्राउंड्स लिखे हुए हैं जिनके खिलाफ, जिन ग्राउंड्स पे आप रिवीजन की या रिवीजन की एप्लीकेशन या रिवीजन फाइल कर सकते हो। पहला ग्राउंड है ये है कि कोर्ट के पास पावर ही नहीं थी, या कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था टू पास दैट ऑर्डर, बट स्टिल द कोर्ट हैज पास दैट ऑर्डर। सेकेंड में कोर्ट हैड द जुरिस्डिक्शन, कोर्ट हैड द पावर, बट उसने वो एक्सरसाइज ही नहीं करी। थर्ड में कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट हैज द पावर, बट it has exercised that power with some illegality or with some material irregularity। तो इन 3 ग्राउंड्स पे तो आप अपील फाइल कर रिवीजन फाइल कर सकते हो। तो ये तो कैटेगोरिकली लिखे गए हैं। चौथा ग्राउंड मैंने जोड़ दिया, एंड दैट इज उन ऑर्डर्स के खिलाफ भी तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हो जो ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा है। जो ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं है टू एनी हाई कोर्ट और एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट, उनके खिलाफ भी तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। एक और ऐड कर लो, पांचवा, ये लिखा नहीं है बट ऐड कर लो। कोर्ट के पास पावर है सुओ मोटो भी, टू पिक अप एनी मैटर and start hearing it in the capacity of revision। कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर भी होती है अपने आप। So these 4 cases, sorry, इसको समझो, these 3 cases are mentioned, these 4 you yourself have added। चौथा जिनके खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते उसके खिलाफ आप रिवीजन फाइल करोगे। पांचवा, कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर भी होती है। कोर्ट हैज द पावर सुओ मोटो टू पिक अप एनी मैटर और पिक अप एनी एप्लीकेशन फॉर रिवीजन। समझ में आया? यस सर। ठीक है जी। एवरीबडी, ये पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा। सेजल इमानी, समझ में आ रहा है? क्लियर है सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है। देखो, there is one term, however it is not mentioned in the section, but I just want to refer it। There's something called as interlocutory order, LOCUTARY, interlocutory order। अब what is an interlocutory order? इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो कोर्ट पास तो कर देती है ऑर्डर्स, बट दोज ऑर्डर्स डज नॉट मटीरियली, emphasize on this word, those orders which the court pass but it does not materially affect the merits of the case। कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया ड्यूरिंग द ट्रायल चल रहा है बिटवीन मी एंड कशिश विद रिगार्ड टू द हाउस, और वो ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के चलते के दौरान कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि जय विल सप्लाई अ कॉपी ऑफ सो एंड सो डॉक्यूमेंट टू सेजल बाय द नेक्स्ट डेट। अब ये ऑर्डर ऑफ सप्लाइंग द कॉपी और सप्लाइंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सप्लाइंग एनी डॉक्यूमेंट फॉर दैट फैक्ट, अगर ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है बट जस्ट कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक देना पड़ता है बाय वन पार्टी टू द अदर, दैट इज एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर, because that order will not affect the merits of the case। अगर कोई ऑर्डर इंटरलोकेटरी ऑर्डर है
इफ द ऑर्डर इज इंटरलोकेटरी ऑर्डर देन उसके खिलाफ आप रिवीजन फाइल नहीं कर सकते। अगर कोई ऑर्डर इंटरलोकेटरी ऑर्डर है देन उस ऑर्डर के खिलाफ आप रिवीजन फाइल नहीं कर सकते। ये पॉइंट समझ में आया तो बताओ। आ गया सर, क्लियर। ठीक है, Yes, sir. देखो एक सेंटेंस लिख लो, however it is important, just write down one sentence. The power of the High Court to do revision, power of the High Court to do revision is related to, is related to slash called supervisory jurisdiction or visitorial jurisdiction. ये अपने कॉलेज में ये दो शब्द बोलना, your professors will get impressed. The power of the High Court to do revision in a particular case is called as supervisory jurisdiction या visitorial jurisdiction. मतलब हाई कोर्ट बेसिकली सुपरवाइज कर रहा है कि कोई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है केस में। पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? कुछ चीज समझाने वाली है तो बताओ। So clear. Yes. ठीक है, अब बस मैं कुछ एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं, with that the section will get over. अच्छा, एक बिफोर आई प्रोसीड अहेड, ये थर्ड क्लॉज भी रह गया है, एंड दैट इज रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ सूट। मतलब अगर आपने किसी ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन फाइल करी है हाई कोर्ट में, तो ये मतलब नहीं है उसका कि जो ट्रायल कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उस पर स्टे लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक केस है, दिस इज बिटवीन मी एंड कशिश विद रिगार्ड टू दिस हाउस। This is with regard to the house, possession of the house. Now, यहाँ मैटर फाइल हुआ, चल रहा है। यहाँ पर किसी ऑर्डर के खिलाफ कशिश ने, सॉरी, यहाँ एक सेकंड, यहाँ पर किसी ऑर्डर के खिलाफ कशिश ने हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल कर दी। अगर now Kashish has filed a revision in the High Court with regard to this order, that does not mean that the entire suit which has been going on, yeah, which will go on in future also, will be stayed. Stay की तरह काम नहीं करता है। Unless High Court या तो suo moto अपने आप, या उस पर कोई एप्लीकेशन लगाई दी जाए। या मान लो मैंने एप्लीकेशन लगा दी कि जब तक रिवीजन पेंडिंग है तब तक आप नीचे वाले कोर्ट को बोलो कि जो ट्रायल चल रहा है उसको स्टे कर दे। Unless there is an application filed and on that application High Court has passed an order of stay, और हाई कोर्ट ने अपने आप सुओ मोटो स्टे लगा दिया छोटे कोर्ट पे जहां पर ट्रायल चल रहा है कि तुम तब तक अपना ट्रायल रिज्यूम नहीं करोगे जब तक मैं इस रिवीजन में ऑर्डर पास ना कर दूं। समझ में आया? तो just because you have filed an application for revision, that does not mean that the trial which is going on in the lower court, the trial will be stayed, unless either High Court suo moto or on an application made by the party stay the trial. Point clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Perfect.
कुछ मैं आई एम थिंकिंग कि ये जो 3 ग्राउंड्स मैंने जहाँ लिखे हुए हैं, इन 3 ग्राउंड कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूं, सो दैट इन फ्यूचर व्हेन यू विल रीड इट योरसेल्फ, तो वो एग्जांपल से इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिकॉल. To have exercised, number 1, to have exercised jurisdiction not vested in it by law. To have exercised a jurisdiction which is not vested in it by law. पहला ग्राउंड कि कोर्ट के पास वो जुरिस्डिक्शन नहीं थी उसको ट्राई करने की. अब वही जैसे मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल दिया, रेरा कोर्ट में यू फाइल अ सिविल सूट, केस में यू फाइल अ सिविल सूट, या इवन बेटर एग्जांपल, कोर्ट ने किसी टुमारो आई विल टीच यू विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट. सो कोर्ट ने किसी सूट में विड्रॉल का ऑर्डर दे दिया कि आप सूट विड्रॉ कर सकते हो अपना, जबकि उस कोर्ट के पास पावर ही नहीं है टू ऑर्डर फॉर विड्रॉल. या कोर्ट ने, इवन बेटर, कोर्ट ने किसी मैटर में अपील सुन ली, कोर्ट हैज हर्ड एन अपील इन अ पर्टिकुलर मैटर विच वाज नॉट अपीलेबल. उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल कर ही नहीं सकते, फिर भी कोर्ट ने उस ऑर्डर के खिलाफ अपील सुन ली. Order is not appealable, still the court is entertaining that order. This is one example of ground 1. Example of ground 2, please. To have failed to exercise a jurisdiction so vested. To have failed to exercise a jurisdiction so vested. मतलब उसके पास वो पावर है, वो jurisdiction है, बट वो फेल कर गया, मतलब उसने किया ही नहीं. एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल दूंगा. ट्रायल चल रहा है, सिविल ट्रायल इज गोइंग ऑन, इज अ ट्रायल गोइंग ऑन. उस ट्रायल में अब मान लो देयर इज अ विटनेस. नाउ प्रोसिक्यूशन will call this witness for examination in chief. प्रोसिक्यूशन ने विटनेस नंबर 1 को बुलाया और उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, मतलब वो कोर्ट में अपना बयान देगा. नाउ दैट विटनेस व्हिच कम्स टू कोर्ट फॉर एग्जामिनेशन इन चीफ, डिफेंस का राइट बनता है कि उसको क्रॉस एग्जामिन भी करे. डिफेंस का राइट बनता है कि उसको क्रॉस एग्जामिन भी करे. और कोर्ट के पास भी पावर है 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में, इंटरलिंकिंग कर रहा हूं, कोर्ट के पास ही पावर है 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में कि वो कुछ इस विटनेस से सवाल पूछ सके. तो प्रोसिक्यूशन ने ये विटनेस बुलाया, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, बट कोर्ट ने अलाउ नहीं की क्रॉस एग्जामिनेशन. Court has not allowed cross examination. Neither the court has asked any question under 165. This is an example of second ground. Court had the power, still the court did not exercise that power. Clear, everybody? Yes, sir, clear है. Yes, sir. ठीक है. Third, to have acted in exercise of his jurisdiction illegally or with material irregularity. कोई irregular order pass कर दिया, for example, court has passed some irregular order. Example, कोर्ट ने एक केस डिसाइड कर दिया विदाउट एग्जामिनिंग द मटेरियल एविडेंस. या कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, मतलब ऐसे मैकेनिकली, हाँ ठीक है हो गया, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड. विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल माइंड मतलब कि विदाउट अप्रिशिएटिंग द एविडेंसेस, कोई एविडेंस नहीं देखा, कोई कुछ नहीं देखा, बट ठीक है ऑर्डर पास कर दिया जो उसके मन में आया. एक और एग्जांपल देना चाहता हूं
which probably many of you might not know. अगर if you know, very good. If you not know, then और अभी भी क्लिक किया माइंड में, आपको मालूम है ये बात, एंड यू प्लीज टेल मी दिस, आई एम आस्किंग यू, आपको ये मालूम है कि आप क्रिमिनल लॉ में अरेस्ट करवा सकते हो किसी को? क्रिमिनल लॉ में अरेस्ट का प्रोविजन है सेक्शन 41 to 60A CRPC. This you know that in criminal law you can get person arrested. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. But do you know that in civil law also you can get a person arrested? क्या ये मालूम है आपको? No, क्रिमिनल sir. लॉ में, हाँ, क्रिमिनल लॉ में तो यू कैन गेट अ पर्सन अरेस्टेड, प्रोविजन सामने लिख दी मैंने, 41 to 60 CRPC. सिविल लॉ में भी आप किसी बंदे को अरेस्ट करवा सकते हो, मालूम है आपको? लेकिन ये अरेस्ट थोड़ा डिफरेंट अरेस्ट होता है एज कम्पेयर टू दिस अरेस्ट. इस अरेस्ट में अगर वो बंदा जब वो जेल अरेस्ट होकर जेल में जाएगा तो जेल में उसका रहने खाने पीने का खर्चा ऑपोजिट पार्टी जो जेल भिजवा रही वही देती है. दिस इज डिफरेंस of arrest in CRPC and in CPC. This is a difference. As compared to CRPC, in CPC, if the opposite party gets you arrested, then आपका जो जेल में आपका जो भी स्टे होगा, be it a short, because जेल में स्टे बहुत शॉर्ट स्टे होता है, 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का, बट जो भी स्टे होगा उस स्टे का पैसा आपको वो जो दूसरी पार्टी जो आपको कोर्ट भिजवा रही है, सॉरी जेल भिजवा रही है, that person will pay expenses. This is very important. ये बहुत कम लोगों को यूजुअली मालूम होता है. So in civil also you can get a person arrested. So why did I talk about why am I talking about this? Is because मान लो किसी मैटर में कोर्ट ने अरेस्ट का ऑर्डर पास कर दिया, सिविल मैटर में कोर्ट ने अरेस्ट का ऑर्डर पास कर दिया. अब अरेस्ट का ऑर्डर पास कर दिया विदाउट गिविंग एन opportunity to the other party जिसको अरेस्ट कर रही है to explain why I should not arrest you. जैसे एक शो कॉज नोटिस नहीं मिलता आपको, उस शो कॉज नोटिस में लिखा होता है कि you tell me why I should not do this, why I should not impose a penalty upon you. तो सिमिलरली सिविल केस में भी बिफोर अरेस्टिंग अ पर्सन कोर्ट एक शो कॉज नोटिस देती है, you tell me why I should not arrest you and put you in civil jail, सिविल प्रिजन बोलते हैं यूजुअली. तो कोर्ट ने विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी कोर्ट ने उसको अरेस्ट करके जेल में डलवा दिया. सो कहने का मतलब बेसिकली ये है, दिस इज ऑल्सो मटेरियल इरेगुलरिटी. दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल अपने कॉलेज में साइट करना, साइट दिस एग्जाम्पल इन योर कॉलेज. That court, what is a material irregularity? That court without giving an opportunity to the opposite party, without giving an opportunity to the opposite party has arrested that party to show cause as to why I should not arrest you. This is a very good example. So कहने का मतलब ये है that in civil law also, लिख के रख लो अपनी कॉपीज में, you can get a person arrested. But this is a very good example of showing material irregularity. समझ में आ गया? Everybody, revision is clear. I've given you examples of the 3 grounds, plus I've covered the 3 clauses.